have finished with the problem related to permutations on the last class. Of course, we have lot many problems to do, but before we go for those problems, because they might contain some mixture of permutation as well as combinations. So आज पढ़ने वाले हैं combinations पहले. Combinations का definition वगैरह पढ़ के, theorem वगैरह पढ़ के, जब ये खत्म होगा, then we'll again take up some problems which are very very important, right? So अभी मैं लिखने जा रहा हूँ combinations का definition, right? Okay. So you see here combinations. So in the combinations, we are going to take the collection of R objects from n different objects at a time. So that is given by NCR. This is the symbol we are going to use, and this is n factorial divided by R factorial into n minus R factorial. Now this is the formula what we get for working out this particular combinations, right? So अभी एक example लेते हैं, then we will go for the proof also. I'll show you the proof also so that you get acquainted with the maximum things. So पहले एक example ले लेते हैं. Example क्या है? जैसे मान लो you have 4 or say 5 letters A, B, C, D, and then I am asking you, you pick any 2 letters as you wish, right? So you can pick A and B, right? If by chance you pick B and A, we do not want to consider them to be different. These are same, because I am just telling you not to arrange, but to collect it, right? So BC can be there, which is like equal or equivalent to this. So we do not want to count this as separate one. So similarly, you can count what C, D. You can count DE as one another, right? Then EA can be counted as one another. Then you can count AC as another. Then you can count AD as another. You can count BD as another. Then you can count CE as one of the another. Right? So how many you got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? One more is there. One more we are missing. BDCE we have done. AC, AD. BE is not done, I think, right? BE is not included. So we have got 10 sets. Now you might have already understood that it is very difficult to do it manually. How many are there, right? There are 10, we can understand, right? But we can find how many will be there with the help of this formula easily. So in this case, you have a total of how many objects? 5 objects. And how many objects at a time you have to choose? 2. So we, by the formula, we write it as 5C2. Now 5C2 you put in the formula. This will be 5 factorial divided by 5 factorial divided by what it will be 2 factorial, that is R factorial, and then this will be 3 factorial. And if you simplify, it will come out to be 10. So it is much easier, right? Easier because this is going to help us immensely when we take these 5 or these 2 as bigger numbers, right? One thing is automatically understood that this R what we choose must be less than or equal to n, and it should be positive, right? Or maybe 0 also sometimes, because you may not choose any of the item. So sometimes instead of reading like NCR, we read this as N choose R, right? It's a right like rough saying, we say N choose R, right? So to speak it or to like explain it in a first way, right? So this is the idea. So similarly, if out of these 5 letters only, you want to pick say 4 letters, so your expression will be what? 5C4, and that will be what? 5 factorial divided by 4 factorial, and then 1 factorial, 5 minus 4. So that will give you 5. I'm just writing the answers directly. So this is the thing how you work. Okay, fine, very nice. Let me now tell about the derivation of this. But before that, a small trick by which like we can work it out so quickly. How you must be amazed. So that I am going to tell you. Your basic formula is n factorial divided by R factorial into n minus
R factorial. So now you see, out of that, whichever is bigger, right, that you should choose. Anyway, will be just breaking the factorials, right? If I just expand the factorial, I'll be getting it like this. And you expand it up to this term, n minus r factorial. अच्छा, तो what will be the term previous to this? इससे पहले वाला term क्या होगा? देखो तुम, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इससे r से एक छोटा होगा, एक छोटा होगा, मतलब r माइनस वन, ऊपर एक ब्रैकेट, मतलब ये होगा, तोड़ देने से r प्लस वन होगा, राइट? So it will be what? R factorial divided by n minus r factorial. Now these two will be getting cut. So ultimately what we arrive at is this. So now just can you identify how many terms we have expanded up to n minus r plus 1 here? Easily you can count, see, 1, 2, 3 up to r minus 1 it is getting. So that means r minus 1 term from here to here. So 1 n is there additional. So ultimately यहाँ पे ऊपर में जो है r terms का प्रोडक्ट है, r terms प्रोडक्ट, राइट? r terms कैसे निकाला हमने? n से शुरू करके r term तक जाना है. r कहां से मिला? It is indicated by this. So मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, I am just going to tell you the secret of doing this calculation quickly. से कल को अगर किसी ने बोला 5C2 तो तुम्हें करना क्या है वो देखो, 5 से शुरू करो और यहाँ जितना नंबर है उतना बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तक लिखो. जैसे 5 के बाद 4 आया, 2 मिल गया ना नंबर, सो स्टॉप इट बिकॉज 2 इज हियर एंड देन दिस यू राइट अप टू फैक्टोरियल. सो यहाँ से तुम्हें 10 मिलेगा. जैसे अगर किसी ने बोल दिया होता कि 5C3 करो भाई, तो 5C3 कैसे करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे क्या होगा इसका फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1. सो यहाँ से तुम कैसे काट कुट के करोगे वो तुम्हारा मर्जी, राइट? ठीक उसी तरह से if somebody says you that 10C3 is to be worked out, तो how will do 10 into 9 into 8, 3 बार मिल गया, स्टॉप हो जाओ और इसको एक्सपेंड करो. बेसिक फॉर्मूला को अप्लाई मत करना, लंबा हो जाएगा. So this is cutting it here and this will cut it by this, so your answer is 120. So what I mean to say is that instead of applying that basic big formula, you can do it like this and you can do your calculation in a smart way and small way, right? So this is the idea. Now I am going to give you a quick proof of the theorem. The theorem what we have already stated, कि NCR equal to जो n factorial divided by वो होता है, कैसे होता है. So suppose you have, I'll just give the outline proof. I'll not write it completely, right? You have n objects and R to be chosen, right? R to be chosen. And be very alert, यहाँ पे different objects है, सारे object different है और वहां से R different को तुमको choose करना है. बहुत बढ़िया. इसको हम लोग मानते हैं कि this is denoted by NCR. Say the number of ways in which you can pick or choose R object out of n, we suppose NCR. ये हमने मान लिया. इसी का वैल्यू हमको निकाल के बताना है कि दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. हमारा काम ये है. बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो ये है कितना? नंबर ऑफ वेज, राइट? इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग r ऑब्जेक्ट्स, राइट? r ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, बहुत बढ़िया. ओके, मान लो तुमने n से r ऑब्जेक्ट्स को तुमने चूज कर लिया. कर लेने के बाद r ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? r फैक्टोरियल वेज में. अच्छा, ओके, तो इन r ऑब्जेक्ट्स को तुम एक पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो. तो तुम कितने तरीके से चूज किया r ऑब्जेक्ट को? इतने तरीके से. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व arrangement of r objects out of n will be given by what? This thing. But already you know that this is equal to NPR. Please try to see the connecting link. मेरे को n minus r times मिला जिसमें मैं r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ n ऑब्जेक्ट में से, और हर एक उन कलेक्शंस को हम लोग r फैक्टोरियल में अरेंज कर पाएंगे. So total number of ways in which I can arrange r element of n in these many ways. But ये तो हमारे लिए well defined है ही already. NPR हम जानते हैं.
तो यहाँ से तुम एनसीआर को क्या लिखोगे, एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल लिखोगे। तो एनपीआर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो तुम, और आर फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो। सो इसका मतलब तुम्हें ये फॉर्मूला मिल गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला which I have given you a quick proof. Nobody will ask you about the proof, but if you know the proof, it is a strength for you, which will help you to reduce another formula. Please say this. Okay, now I am going to start with the properties, right? Some properties we have to always discuss with these combinations. Properties, right? So let us discuss the properties. These properties are all important, and you have to remember this. There is no way out, no way out, because if you do not remember, then फंस जाओगे। पहली बात तो है NCR जो है is an integer, right? More precisely, a positive integer, right? Always be very clear about this particular things. Number one. Number two, NCR is equal to NCN minus R. इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला में से ही आएगा, कोई जरूरत नहीं। फिर NCA इक्वल टू NCB अगर होता है, देन यू हैव टू ऑप्शन, आइदर A इक्वल टू B और A प्लस B मिलके N बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर, राइट? इनका एग्जांपल मैं दोनों का ही देता हूँ, दोनों का दे देता हूँ एग्जांपल, सो दैट यू गेट ए गुड आइडिया। ऊपर वाले का सपोज किसी ने बोल दिया 10C7 निकालना है, तो 10C7 निकालना है मतलब 10C7 इज बराबर 10C3, राइट? तो इसमें कैसे निकलेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 को तुम जब फैक्टोरियल बना के ऐसे तोड़ोगे तो ये आ जाएगा, दिस विल कट इट बाई 3, दिस विल कट इट बाई 2, सो 60 इज द आंसर, राइट? सो अगर तुम इसको करने जाते ऐसे करके लंबा पड़ता, सो पहला वाला जो ये फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है? नंबर टू देखो, नंबर टू ये वाला NC, मान लो किसी ने बोल दिया NC2 इज इक्वल टू NC8, राइट? सो दैट विल इंप्लाई व्हाट, डेफिनेटली n का वैल्यू इंप्लाई करेगा। n का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस 8। क्या कारण है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर होने से ये वाला आता, तो यहाँ से तुम्हें n का वैल्यू कितना मिला, 10। तो कोई पूछ भी सकता है कि भाई NC2 निकालो, मतलब 10C2 निकालने का बात कर दिया, तो तुम्हें कितना मिलेगा, 9 इंटू 5, 45 मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज द वे हाउ वी यूज दिस। और एक एग्जांपल लेता हूँ सेकेंड वाला प्रॉपर्टी का ही। सो तुम देखो ये बहुत बढ़िया है, यू हैव टू फाइंड दिस, क्वेश्चन के आकार में ले लेता हूँ। इफ 15C3R is equal to 15CR plus 3, R plus 3, then find R ही निकालो, ठीक है? तो R निकालना है, कैसे निकालोगे, आइडिया इज वेरी मच सिंपल, आइडिया इज वेरी मच सिंपल। कैसे करेंगे, यहाँ से दो ऑप्शन आ सकता है, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, ओके। सो यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकता है, या तो ये दोनों बराबर होगा या तो इन दोनों का सम 15 होगा, बट आई कैन नॉट मेक इट आउट हियर। सो वी हैव टू गो फॉर बोथ द ऑप्शंस and we have to explore both the possibilities and we have to see which will be best fit, right? So ऐसे करेंगे, तो यहाँ से क्या मिला, twice r equal to 3, so r equal to 3/2। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, it is not possible। why? क्योंकि तुम क्या आधा ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो कहीं से, नहीं होगा ना, ये थोड़ी कोई एक पेपर का आधा है, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये नहीं हुआ। So that tells you about the other option. So let's see whether other option is giving you possibilities or not. Yes, it is giving you possibilities r equal to 3. So value of r is 3, right? Like this we can find these properties. The properties are very important. Please try to see this. Right? Property number 3 हो गया, आप property number 4 करते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में जो सीरियल में दिया हूँ इसी सीरियल में तुमको याद रखना है, ऐसा कोई नहीं है।
You have to only remember the properties. This is very, very important. So next property is NCR plus NCR plus 1 is equal to N plus 1 C R plus 1. Try to understand only these things here. Very, very important thing to note. ये दोनों में से जो है ना, इसमें बड़ा वाला यहाँ आता है, बड़ा वाला देख लो, कंजेक्यूटिव होता है एंड बड़ा वाला कम्स हियर, और ये दोनों सेम होना पड़ेगा तब एक बढ़ के रिजल्ट में आता है. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू शुड रिमेंबर दिस. दिस इज पास्कल प्रॉपर्टी. सो इसमें क्या आता है, कैसे करते हैं देखो. मान लो तुम्हें कभी ऐसा प्रॉब्लम हम करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ही करेंगे. मान लो तुम्हें ये दोनों करने के लिए दिया, तो तुम्हें इंडिविजुअली निकालना नहीं है, ये हो जाएगा 16C, मतलब इन दोनों में से बड़ा वाला कंजेक्यूटिव में से, और ये दोनों 16 हो जाएगा. हमेशा याद रखना है कि ये कंजेक्यूटिव होना है. अगर 3 और 5 होता तो नहीं होता. राइट, अगर 3 और 5 होता तो ये हम लोग नहीं कर पाते. ठीक है, सो इसका प्रूफ कर देते हैं. इसका प्रूफ कभी कभी पूछता है, कंपटीशन में नहीं पूछेगा बट पूछता है, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ तुम्हें. एक क्विक प्रूफ, इट इज बेटर टू नो. सो आई एम स्टार्टिंग विद NCR एंड NCR प्लस 1. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करो. राइट, यू अप्लाई द फॉर्मूला. सो व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला वी आर कमिंग अप टू दिस. राइट, ये हो गया फॉर्मूला. NCR माइनस 1 ही सही, कोई बात नहीं. हाँ, ये हो गया. अब यहाँ से देखो जो जो कॉमन आता है, सबसे पहले तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और बाकी अभी यहाँ पे कॉमन लेने से पहले हम लोग इसको बनाते हैं थोड़ा. क्या बनाएंगे देखो, r बड़ा है ना, r प्लस 1 बड़ा, r प्लस 1 बड़ा है तो r फैक्टोरियल को टच नहीं करेंगे. r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे कर देते. n माइनस r बड़ा है, n माइनस r बड़ा नहीं है, n माइनस r माइनस 1 बड़ा है या नहीं, या नहीं. जस्ट ट्राई टू टेल. योर बिगर वैल्यू इज दिस टाइम एंड दिस इज स्मॉलर वैल्यू. क्यों? क्योंकि ये n माइनस r है और ये n माइनस r माइनस 1. सो जो छोटा है, यू डू नॉट ट्राई टू चेंज दिस. बड़ा जो है उसमें से बाहर निकालो, निकाल के इसको बड़ा बनाओ. आप देखो यहाँ से क्या क्या बराबर है, और जो भी कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो. एक तो r फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, और एक n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो. लेने से क्या क्या बचेगा देख लो. r फैक्टोरियल और ये चला गया तो ये n माइनस r हो गया, और यहाँ पे r प्लस 1 जो है ये बचेगा. बाकी दोनों तो कॉमन चला ही गया. बस यही है तुम्हारा प्रूफ. अभी सिंप्लीफाई कर देने से प्रूफ हो. राइट, सो प्लीज देखोगे इसको, मैं तो बहुत जल्दी करके दे रहा हूँ. You have to take your full time. You have to do this proof yourself so as to get it conveniently. So ये हो गया, और ये r plus 1 plus n minus r. राइट, ये हो गया. फिर ये दोनों कट गया, r कट जाएगा, n plus 1 होगा. राइट, तो आप सबको मिक्स करने का टाइम आ गया. देखो, n फैक्टोरियल पहले से चल रहा था, यहाँ से मिलेगा तुम्हें, अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो n प्लस 1. देख लो, फिर ये r प्लस 1 के साथ मिला देना है. r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ही तो होगा सब, और n माइनस r को मिला देना है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ. एक्चुअली जो हमने तोड़ा था वही अभी हमको जोड़ना है. तो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, n प्लस 1 फैक्टोरियल, and this is r plus 1 factorial, and this is n minus r factorial, which again you can write as n plus 1 c r plus 1. Right, and this is equal to r h plus. See, I have written directly written. Please see this. Now let us go to the next property of this. So next property है NCR is equal to n by r n minus 1 c r minus 1. Actually this is not at all a property. This is not at all a property. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है नहीं खास, फिर भी चलो 2 लाइन का प्रूफ है तो कर देते हैं. ये तुम्हें याद रहना चाहिए. इट विल बी व्हाट, n minus
सॉरी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r फैक्टोरियल, एक लाइन में प्रूव होगा। इसको तुम n माइनस ऐसे कर लो, ठीक उसी तरह से r को बाहर करो तो ये r माइनस वन फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे जो भी लंबा ऐसा है इसको लिख दो क्या, n माइनस वन माइनस r माइनस वन ब्रैकेट में, ये जो बार दिया है ब्रैकेट में देता है, सो यहाँ पे प्लस होके ये कट जाएगा, तो यहाँ से n बाई r हो गया एंड देन n माइनस वन। उसके बाद तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिख ही जाएगा, अभी मुझे नहीं बोलने से भी, राइट, इट इज द फॉर्मूला। So what ultimately you will be getting, it is n minus r and then n minus 1c r minus 1. So actually कभी कभी क्या है, ये मैं नहीं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट कभी कभी इसको लाइक कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा सा कमाल से यूज कर सकते हैं। मान लो किसी ने दे दिया, देखो मैं तो मिला के दूंगा लेकिन कभी हमें कैलकुलेशन का ऐसा जरूरत पड़ सकता है। मान लो ये एक क्वेश्चन है और किसी ने बोल दिया कि ऐसा टाइप का एक, ये दोनों का वैल्यू निकालो, तो तुम अगर ऑब्जर्वर ज्यादा बढ़िया से ऑब्जर्व कर सकते हो तो तुम देख लो यहाँ से दोनों से 101 और 8 अगर निकाल लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, 167 बचेगा एंड योर आंसर विल बी दिस क्वेश्चन। सो ऐसे करके कभी कभी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होने से हम लोग कोई कोई क्वेश्चंस में इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, नंबर 6 होगा, नंबर 6। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। ये एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन, ध्यान से देखोगे इस बार डिवीजन बोल रहा हूँ, ऊपर जो है ना एक बड़ा है इसमें, ये दोनों हमेशा कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो योर आंसर इज एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। अच्छा कैसे आया, कैसे आया वो तो प्रूफ में पता चलेगा, अभी याद कैसे करोगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। एन से इसको माइनस कर दो, क्रॉस मतलब ऐसे, और ये आर को इधर बैठा दो, यही फॉर्मूला है। एन से इसको माइनस करो और आर को नीचे बैठाओ, ये तुमको मेमोरी एड के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेना चाहते हो, मान लो कहीं तुम्हें दे दिया से 100C7 और यहाँ पे दे दिया 100C6, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, दिस माइनस दिस 94 और 7 यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। हाँ यहाँ पे मगर नेसेसरीली नीचे वाला छोटा होना चाहिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा होने से गड़बड़ होगा। वैसे उल्टा पुल्टा होने से भी गड़बड़ नहीं है, इफ यू कैन विजुअलाइज दिस सेम फॉर्मूला कैन बी रिटेन इन ए डिफरेंट वे। अगर बाई चांस ये r माइनस वन हो गया और ये एन सी आर हो गया, तो चेंज क्या होगा, यहाँ से ये माइनस करके कहाँ बैठेगा, पहले ऊपर बैठा था, इस बार कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा और आर ऊपर बैठेगा, right? Ultimately you have got this particular one. So you have to be little tricky enough to apply this formula conveniently. That's the main part of the properties. Now last में जो property है बहुत ही मामूली सा property कुछ लिखूंगा, जैसे NC नॉट, ये हमेशा याद रखना 1 होगा, NC एन हमेशा क्या होगा 1 होगा, एंड NC 1 हमेशा n होगा। So please try to observe all these things very, very carefully. Now I am going to tell you one note, very, very important note, because this is note on the symbol. I am writing it like this. This can be written as n, ऐसे भी लिखा जा सकता है. This can be written like this also. Equivalent notation. Some authors may write like this also. n यहाँ पे, c यहाँ, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। और जब हम लोग n के बारे में जानेंगे कि टोटल नंबर n है, हम सिर्फ लिखेंगे CF. So these are equivalent notations which we might be using afterwards, right? So अभी हम करते हैं questions. We start with question. Say question number 1, right? So हम लोग लिखेंगे prove that. I haven't typed the questions today. तो prove that मैंने सिंबल जो दिया था उन सिंबल्स को यूज करूंगा, NCR Okay, now we are coming to this. Question is this: NCR plus 2
and this is r minus 1, then plus and r minus 2 here, and that is equal to n plus 2 r. So this is what you have to prove, right? So purposely I use this symbol this time, right? So what happened? We can just convert this symbol into our comfortable one. Then it is actually more convenient for us to see this. So we have used this symbol, right? It is NC r minus 2. ऐसे हो गया. So इसको देखो, अगर कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो क्या होगा? They will try to apply the formula completely, and they will be in problem. So instead of that, what we'll do, we have observed one thing, because this coefficients, the R value you see, they are conjugative. So out of that two, one I'll pair here, and the another one I'll pair here. And once I pair with this, then I can apply that Pascal's formula, right? Conjugative वाला. तो क्या होगा? ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, और नीचे में से जो बड़ा है वो आएगा. ये बड़ा है तो ये आएगा. ठीक उसी तरह से यहाँ ऊपर एक बढ़ जाएगा, और नीचे बड़ा जो है वो आएगा. बड़ा ये r माइनस 1. बहुत बढ़िया, आ गया. फिर अभी फिर पास्कल प्रॉपर्टी यूज होगा. दोनों सेम है, ये एक का डिफरेंस में है, तो ये एक बढ़ जाएगा और दोनों में से बड़ा आ जाएगा. So you can see that this is equal to RHS, right? So hence the proof. Please see this. Let's come to the next question. Question number 2. So here we'll be doing the fundamental questions at the beginning so that we get the track, right? If twice NC3 is to NC3 equals 11:1, find the value of n. Find the value of n. You have to find the value of n if you get this. Okay. So here we don't have to do much, right? Much in the sense that you do not have any creativity to be done. Your work is only to evaluate this by using the normal formula what you know. So what I can do here is this. You see, I'll be using the idea of shortcut. कैसा shortcut? हम लोग पूरे फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही लिखते हैं, एंड देन दिस आई विल रिड्यूस टू 3 टाइम्स, राइट? जैसे एक बार ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हो, राइट? सिमिलरली ये भी 3 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 3 बार लिख दिया, और नीचे 3 फैक्टोरियल होगा. दिस इज इक्वल टू 11. बहुत बढ़िया भैया. तो ये क्या होगा? 3 फैक्टोरियल कर लिया. So they got cut, cancelled, right? Cut is not a good word, right? So anyway, पहले 11 को यहाँ रखो, इसमें से देखो क्या क्या तुम और हटा सकते हो. Twice n minus 2, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले सकते हो. So ये n minus 1 और n minus 2. तो यहाँ से तुम बेझिझक n को काट दो, क्योंकि n तो 0 हो नहीं सकता. n 0 हो नहीं सकता. n हमेशा देखो ये 3 से तो ऊपर होना ही पड़ेगा. मिनिमम वैल्यू 3, तो n इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी कट जाएगा. सो व्हाट यू लेफ्ट आउट विथ इज दिस थिंग्स, राइट? सो नाउ यू गेट द मल्टीप्लिकेशन डन, राइट? यू मल्टीप्लाई, it is 4n minus 2, then 11n minus 22. So now what you will get, you collect it, it is 7n equal to 7n equal to, did I do any calculation error? Have I done any calculation error? Twice n minus this. Oh, yes, I did a calculation error. Please see this. This should be not 2, this should be 4. Here it is 4. So it will be 8n, and this will be 4. I'm sorry. So it will be 3n actually. So 3n, and then this will be equal to 18. So ultimately n equal to 6. So value of n is 6. Okay, so let's start with the next question. Question number 3.
right? If n plus 1c r plus 1 is to ncr is to n minus 1c r minus 1 is equal to 11 is to 6 is to 3, find n and r, ये दोनों वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसमें तुम पेयर वाइज करो हमेशा, जब तुमको ऐसे प्रोपोर्शन दिखता है तो इट इज बेटर यू डू इट बाई पेयर वाइज, राइट? सो मैं पहला दोनों लिख लेता हूँ। पहला वाला रेशियो दिस डिवाइडेड बाई एनसीआर विल बी इक्वल टू कितना होगा 11/6, एंड फिर दूसरा वाला देता हूँ एनसीआर डिवाइडेड बाई n माइनस 1c r माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 6/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? ये बड़ा बड़ा हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से n+1 और नीचे से n+1 को निकाल देंगे r+1, तो यहाँ पे एनसीआर रहेगा, तो नीचे वाले को कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो हियर डायरेक्टली आई बी गेटिंग दिस इज n+1 divided by r+1 equal to 11/6. Now see, here directly I'll use that thing. So n by r which रहेगा, right? n by r is equal to 6/4. 6/3 can be written as 2 only. I did not notice that, right? So you got this. You got this. So यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? n will be equal to twice. इसको अब यहाँ पे बैठा दो. You can give a equation number here so that you can refer to it. तो ये n का वैल्यू बैठेगा 2r+1, राइट? और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एट ए टाइम में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगा r+1 होगा। कहाँ से मिला? बाई स्टार। तो ये 16 टू ज़र कितना हुआ 32r, ये 16, ये 11r प्लस 11, राइट? तो ये हो गया। फिर 32 में से 11 को माइनस करो, राइट? कितना होगा? 1 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, 21r, और ये अगर इस साइड में चला गया तो माइनस होगा। मैंने कुछ गड़बड़ फिर किया क्या? Did I do any mistake again? 16, सॉरी, अगेन मैंने मिस्टेक कर दिया, ये 16 पकड़ा। आई एम सॉरी, मेरा लिखा ही कारण ये 16 नहीं है, ये 6 है। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगेन, पोर हैंडराइटिंग ऑफ माइंड। इट इज 6 to the 12r होगा और ये 6 होगा। सो जब ये 12r होगा तो फिर क्या होगा वो देख लो, 12r माइनस 11r मतलब r हो गया, और यहाँ पे हो गया 5। सो यू गॉट r इक्वल टू 5। r इक्वल टू 5, वेरी नाइस। अगर r इक्वल टू 5 है तो व्हाट इज n इक्वल टू 2 into 5? So you arrive at the last answer. Please see this. Okay, let's start with the next question. Question number 4. Question number 4, right? If NC r minus 1 is equal to 36, then NCR is equal to 84, and then NCR plus 1 is equal to 126. Find R. So you have to find R if this is the case. बढ़िया। तो यहाँ पे फिर तुम देखो ये सब कंजुगेटिव, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, we'll talk about the ratios, right? Ratios. तो याद करो, अगर मैं रेशियो करता हूँ, मैं उल्टा लिख रहा हूँ पर्पसली, यहाँ पे छोटा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम याद करो ऐसा एक फॉर्मूला हुआ था जिसमें छोटा को नीचे रखा था, तो इट इज बेटर टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, right? It is better to apply the formula directly. So what I'll do here is r minus 1, it is नीचे आ जाएगा 36 और ऊपर आ जाएगा 84, ये एक हो गया। और दूसरा वाला इन दोनों का डिवीजन करो, ऊपर में बड़ा वाले को रखो, दिस डिवाइडेड बाय NCR। so NCR plus 1 का हो गया 126 डिवाइडेड बाय 84, बस हो गया, ठीक है?
आप फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, मैंने फॉर्मूला का मेमोरी दिया था, दिस माइनस नीचे वाला मतलब n माइनस आर प्लस वन, और ये आर हो गया, और इसमें से जो कटेगा तुम काट लो, 9 4 विल डिवाइड राइट, 4 will cut it by 21, 4 will cut it by 9. अच्छा, by 3, 7 by 3, 3. So it will be 7 by 3, right? And then we can multiply this now. So if I multiply, it is 3n minus 3r plus 3 is equal to 7r. Then we'll go for the calculation. Let me work out this step as well. इसमें क्या होगा, n minus r ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r plus 1, right? That formula only. तो यहाँ पे भी 3 से करें, 4 से करेंगे ना, 3 से करेंगे, 3 से ये नहीं जाएगा, आ जाएगा, 3 से जाएगा 4 टाइम्स, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 से जाएगा 24 में, 8 से जाएगा 24, अच्छा 4 से नहीं जाएगा 6, 7 से जाएगा 6 टाइम्स, 7 से जाएगा 4 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 2 से जाएगा 2 टाइम्स। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, राइट? तो यहाँ से तुम देखो क्या कर सकते हो, यू सिंप्लीफाई दिस, 2n, r को उस साइड में लेके गए तो 5r प्लस 3 हो गया, right? I am adding a new page in order to do the calculation, right? So I am left out ultimately with these two equations. यहाँ पे होगा 3n is equal to 10r plus 3. So ये एक equation है, ये दूसरा equation है. Treat them as linear equation. They are linear only, right? So we can now solve it. क्या करेंगे, देखो एक लाइन में सॉल्व करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर माइनस कर देते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? इसको 2 से करेंगे 6n, इसको 3 से करेंगे 6n, तो लेफ्ट साइड में 0 हुआ, इसको 2 से करेंगे 20, इसको 3 से करेंगे 15, सो 20 माइनस 15 विल गिव यू 5r, इसको 2 से करेंगे 6, इसको 3 से करेंगे 9, तो 6 माइनस 9 विल बी गिविंग यू हाउ मच, 3। क्या गड़बड़ किया मैंने आज, मेरा क्या गड़बड़ हो रहा है, व्हाट इज द गड़बड़ी आई एम डूइंग here, actually this should be minus 3, if this will be minus 3, then what will happen, this minus 9, it will be multiplied by 2, 6, 6 minus 9, minus 15, minus 6 minus 15, very nice. So r will be equal to how much, 3, r will be equal to 3, very nice. Therefore now n you have to find, use to 2 में से n निकालो, so 2n is equal to 3, if I put 15, 15 plus 3, 18, so what is equal to n, it is 9. Anyway, they were asking you to find only r, I think, but I have found n as well. Please see this. So here this is the first statement problem for you, right? We are going to start with statement problem. क्या दिया है, find the number of ways of selecting 2 persons out of 21 persons. बहुत बढ़िया है, 21% में से 2 आदमी को कैसे सिलेक्ट करोगे, 21 से, that will be what, 21 into 20 divided by 2 into 1, so ये 10 हो जाएगा, 210, बहुत बढ़िया से तुम कर सकते, you can do it very very quick. You come to the next question now, right? Come to the next question now. Let us just start with the next question. So what is the next question? Okay, just find the number of ways of selecting, right? I'm just trying to graduating the problem. 2 points out of 21 points in a given plane, right? एक given plane में कितने तरीके से तुम 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ this 21 points, right? So कहानी सेम है, 21 C2 ways में, मतलब 210। अच्छा, मैंने क्यों, why have I dragged this particular question, क्या जरूरत पड़ा मेरे को इस क्वेश्चन को लेने का, तुम्हें ये सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा इच्छा करके कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकता हूँ,
Actually, next is the main question. Question में कैसे रखूंगा? My question will be there. How many? How many line segments are segments? MENTS segments are possible if 21 points in a plane are joined in all possible ways. Possible ways. Of course, there will be now two parts. No three of them are collinear. Number one, and then number two is that if say 8 of them are collinear, right? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो लेट अस जस्ट ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली आर द आंसर्स। तो मैंने ऊपर में जो किया तुम्हारे लिए कि दो पॉइंट्स कैसे तुम 21 पॉइंट्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑल द सेम, राइट? इफ यू पिक एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम द प्लेन दैट डिसाइड्स अ लाइन, तुम चाहे A1 को A2 के साथ ज्वाइन करो या A2 को A1 के साथ, तुम्हें सेम लाइन मिलेगी। तो मतलब पॉइंट्स को अरेंज नहीं करना है, कोई भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है। दो पॉइंट सिलेक्शन मतलब एक लाइन सिलेक्शन हुआ। तो पहला वाला आंसर का क्या होगा? डायरेक्टली सी, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर्स, यू नीड टू नो दैट 21 पॉइंट्स में से दो पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है। नो थ्री आर कोलिनियर। तो कोलिनियर नहीं है मतलब जो पॉइंट्स उठाओगे उतना लाइन्स तुम्हें मिलेगा। और कितना लाइन मिलेगा? 210। लेकिन सेकेंड केस में देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर 8 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होता तो तुम्हें इतना लाइन मिलने वाला था। लेकिन जब ये 8 पॉइंट्स ऐसे करके कोलिनियर हो गया तो तुम इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, जो भी करो, लेकिन तुम्हें मिलेगा तो एक ही लाइन। तो 82 लाइन मिलने वाला था उन 8 पॉइंट्स में से, लेकिन अभी तो मिलेगा नहीं। सो दैट विल बी रिड्यूस्ड। हाँ, बट रिमेम्बर इट सब मिलके एक लाइन बनाएगा ना, तो 81 होगा। सो योर टोटल नंबर ऑफ आंसर विल बी इट इज 210। ये कैसे होगा? ऑर्डरली कर सकते हो अभी। 8 ये 4 हो जाएगा, 4 into 7 28 प्लस 1, तो कितना होगा? 210 से 27 माइनस करना है। 210 से 20 होने से 190, 190 से 7 जाने से 183। जस्ट चेक द कैलकुलेशन, इतना लाइन्स तुम्हें मिलना चाहिए। प्लीज see this. So you see, now I can see this particular question in a different way. Let us see how many different ways we can represent the questions, right? So you see, how many, sorry, how many chords are possible to draw, right, by joining, right, 21 points on the circumference of a circle, all possible ways। सारे पॉसिबल वेज में अगर तुम 21 पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस के ऊपर है किसी एक सर्कल का, उनको ज्वाइन करोगे तो कितना कॉर्ड मिलेगा? भाई कहानी सेम है, बस क्या है, रिप्रेजेंटेशन को उल्टा पुल्टा किया। तो यहाँ पे कॉर्ड का मतलब समझो। कॉर्ड बोले तो कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के ऊपर रहता है उनको ज्वाइन करने से मिलता है। तो इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, दैट मीन्स 210 कॉर्ड मिलने वाला है। सो देयर विल बी 210 कॉर्ड्स on a circle or inside a circle once you try to join them in all possible ways. How many points? 21 points. अच्छा, इसको और तरीके से देखो, और एक तरीका देते हैं, ठीक है? Let us see how many diagonals are possible for a polygon, right? Polygon with 21 vertices, right? देखो क्वेश्चन को एक ही में 21 नंबर को ही लेके मैं अभी चला रहा हूँ, बिकॉज
तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे ये वेरी करता है। सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे वेरी करा सकते हैं। सो 21 पॉइंट्स लेके एक पॉलीगन बनाना है वर्टेक्स लेके, और उन पॉलीगन्स का डायगोनल कितना हो। सिंपली तुम अभी एक में छोटा पॉलीगन में दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू सी। हेक्सागन में दिखा रहा हूँ, देन विल बी ट्राइंग टू एक्सटेंड इट। हेक्सागन में कितना वर्टिसेस होता है, जितना साइड होगा उतना ही वर्टिसेस, राइट। तो डायगोनल का मतलब है जॉइनिंग नॉट टू एडजेसेंट पॉइंट्स। यू हैव टू जॉइन टू पॉइंट्स व्हिच आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट को जॉइन करने से साइड मिलेगा, मतलब ऑपोजिट पॉइंट्स में से जॉइन करोगे तो ऐसे डायगोनल मिलेगा। दिस इज द वे, राइट। बट इफ यू गो ऑन काउंटिंग लाइक दिस, इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बोल लूंगा कि मेरे पास टोटल लाइन सेगमेंट जो होगा 21 पॉइंट्स को जोड़ के, कैसे भी जोड़ो, ऑल पॉसिबल वेज में, इतना बनेगा मेरा क्या, व्हाट इट विल बी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग द साइड्स। क्योंकि जब मैं बोलूंगा 21 पॉइंट्स का दो दो उठाओ, कभी कभी ये दोनों भी उठ जाएगा, मतलब ये साइड भी काउंट हो गया। दैट मीन्स दिस विल कंटेन द नंबर ऑफ साइड्स आल्सो। सो उसमें से जब नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर दोगे, जितना बचेगा, दैट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, right? So you can write this as 189. This is right. So 189 diagonals है। Okay, very nice। इसको अभी जेनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जेनरलाइज, अगर मान लो n वर्टेक्स, n वर्टेक्स वर्टिसेस, तो कितना होगा टोटल, n c2 माइनस n। इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। वी आर गोइंग टू गेट ए फॉर्मूला, वेरी नाइस फॉर्मूला। यू सिंप्लीफाई दिस, राइट। n को कॉमन ले लिया, n माइनस वन बाई टू माइनस वन रह गया। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। सो हमेशा के लिए फॉर्मूला बना के याद रखना कि कोई भी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल जो है n इंटू एन माइनस वन, सॉरी n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू है। दिस इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ diagonals of a polygon. Please say this. Okay. Now let us come to the next question. Next question, right? Next question में भी मैं वही पॉइंट को लूंगा, 21 ही लूंगा, राइट। देखो, how many handshakes are possible among 21 persons, 21 persons, if, right, every person shakes hands with everyone, right, with everyone once। ये भी बोल देते हैं once, एक ही बार करेगा। अगर 21 आदमी एक दूसरे के साथ एक एक बार हैंडशेक करता है तो कितना हैंडशेक होगा, भाई सेम है। दो आदमी एक बार मिला, दो आदमी को पिक किया, मतलब एक हैंडशेक। सो कितने तरीके से दो आदमी को ले सकते हो, दो सदस्य, राइट। सो देखो, मैं बस एक ही पॉइंट को लेके यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया। तो इसका मतलब ये 21 को हम लोग बदल सकते, वी कैन चेंज द 21 इन वेरियस वेज। So let us just come to the another problem, one more problem, let us discuss। Okay, so इस बार देखो थोड़ा सा पैटर्न बदल लेते हैं क्वेश्चन में। Okay, find the number of triangles that can be formed by using say 21 points को 21 ही रखते, points in a plane such that, या फिर if, right, no three of them are collinear, कोई भी कोलिनियर नहीं होगा, and 8 of them are collinear, उनमें से 8 कोलिनियर है, तो फिर कितना ट्राइंगल बनेगा, और कोलिनियर नहीं होने से कोई भी कितना बनेगा। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो, ट्राइंगल बनता कब, ट्राइंगल बनता है 3 पॉइंट से जो कोलिनियर ना हो। अगर कोलिनियर बाई चांस हो गया तो ट्राइंगल बनेगा, राइट, दे कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो मीनिंग इज दैट कोई भी 3 तुम पॉइंट उठा लो और कैसे भी ज्वाइन करो, ट्राइंगल तो मिलेगा एक। तो इसका मतलब तुम अगर 21 पॉइंट्स में से
3 पॉइंट्स उठाओगे तो इतने तरीके से उठाओगे और इतना ही ट्रायंगल बनेगा। सो कितना ट्रायंगल बन गया? सी आई एम नॉट शोइंग यू द कैलकुलेशन पूरा परफेक्टली, कैलकुलेशन स्टेटमेंट लिख लेना। सो इसमें से तुम्हें कितना मिलेगा देख लो। दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 7, दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 10, तो इट इज 3 13, राइट, 6 3 3, हाँ। सो इतना बनेगा ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट केस में सोच लो, इतना ट्रायंगल बनने वाला था लेकिन 8 ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब 8 ऐसे करके एक लाइन में हो जाएगा। तो इनमें से जो 3 पॉइंट करके ज्वाइन करके ट्रायंगल मिलने वाला था वो कितना होता? 8 से 3 होता। लेकिन उनमें से एक भी ट्रायंगल मुझे नहीं मिला 8 से 3। तो इसमें बस माइनस होगा, गलती से भी यहाँ पे 1 नहीं होगा। कारण क्या है? आगे लाइन में हमने 1 को ऐड इसलिए किया था क्योंकि सब मिलके एक लाइन देता था, लेकिन यहाँ पे सब मिलके एक ट्रायंगल नहीं देगा। मतलब जितना ट्रायंगल इनसे मिलने वाला था उतना ही अभी हट जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो तुम आंसर निकालो यहाँ से 21C3 जितना होगा। कैलकुलेशन को करो भाई, अगर कैलकुलेशन गलत है तो प्लीज करेक्ट इट योरसेल्फ, इट इज नॉट अ बिग डील। सो ऐसे करके हम लोग करेंगे, ये कर गया, इट इज 56। So 1330 minus 56 कुछ एक होगा। That answer you write. Please see this. Let us start with another question. Right? Question number 12. Question number 12. Next question. Right? You can write like this. In how many ways? How many ways you can select? Right? Select a team of 11 players. Right? Players out of, right, 17 players, 17 players, right? If यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1, नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कैसे भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, राइट? इफ, राइट, एग्जैक्टली 4 स्ट्राइकर्स, कोई भी है, मैं एक वर्ड यूज किया हूँ बस, स्ट्राइकर्स आर देयर in every selection, right? Selection where it is known that there are 6 strikers among 17 players। वो जो 17 प्लेयर्स में से तुमको सिलेक्ट करना है उसमें 6 स्ट्राइकर्स है, हमें पता है। तो उसमें से तुम्हें टीम सिलेक्ट करना है 11 वाला, जिसमें तुम्हें 4 स्ट्राइकर रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कंडीशंस अप्लाई कर दिए, राइट? वी कैन गेट मेनी क्वेश्चंस, मैंने जस्ट टेम्पररी तुमको ये दिखाने के लिए कर दिया। विल बी डूइंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द अदर डे। तो 11 प्लेयर्स अगर 17 में से सिलेक्ट करना है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 17 से 11 होगा, 17 में से 11 प्लेयर्स। अब इसको तुम अगर करना चाहते हो तो कर लेना, मैं नहीं करूंगा, ओके? यहाँ पे देखो कहानी को, यह थोड़ा अलग हो गया। एग्जैक्टली 4 स्ट्राइकर होना पड़ेगा तुम्हारा 11 वाला टीम में, और स्ट्राइकर कितना है टोटल जहां सिलेक्ट करने जा रहे हो? 17। तो पहले क्या करोगे, प्रैक्टिकली सोचो। एवरी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स गिव्स यू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं जिसमें प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होगा। तो मैं अगर सिलेक्टर्स होता और मैं बोलता कि मेरे को बस भाई 4 ही स्ट्राइकर चाहिए टीम में, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, बोलूंगा 6 स्ट्राइकर जो है इधर रह जा और 11 जो है इधर रह जाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरे को 4 स्ट्राइकर चाहिए, तो यहाँ से 4 स्ट्राइकर को कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे? 6C4। बस यहाँ से तुमने 4 स्ट्राइकर को उठा लिया, 2 तो बचेगा ना, इसको यहाँ आने मत देना, इनको बोलना घर जाना, क्योंकि दे विल नॉट बी सिलेक्टेड, नहीं तो स्ट्राइकर ज्यादा हो जाएगा। तो बाकी जो 11, सॉरी बाकी जो 7 प्लेयर्स है 11 में से, क्योंकि 4 तुमने ले लिया, 11 में से अगर 4 ले लिया तो बाकी 7 बचेगा, 7 यहाँ 11 से सिलेक्ट होगा, ये जो रेस्ट 11। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव प्रोसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ दिस। सो इफ यू वांट यू कैन डू दिस। 6C4 मतलब 6C2 याद करो प्रॉपर्टी यूज करके, तो 6C2 मतलब 15 हो जाएगा, 5
ठीक है, 6 into 5 30, 30/2। और 11C7 तुम अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ टीम सिलेक्शन विल बी दिस मच। प्लीज सी दिस।